Okay, today's topic is software testing process, right? So the first question is arise, why need of software testing, right? So first point, computer program are designed and developed by the human being and hence are prone or errors, right? Unchecked, they can lead a lot of problem including social implications, right? Testing the software becomes an essential part of software development lifecycle. Testing is essential because if you not test anything, that is a problematic thing. The particular development part is behave properly or not. How we confident about that things. Without testing, that is not possible. So the testing is essential part of the development process. We're talking about the software industry, mechanical industry, electric industry, right? Each and every industry, the testing is necessary part, right? Most of the time use some so the quality check, right? ISI marks, right? ISO standard, CMM standard. So these are the quality checks and quality is ensured for the testing purpose, right? So testing the software become as essential part of the software development life cycle. In traditional method, testing is applied after a certain phase of software development, but in newer approach, testing is applied each and every phase of the development process, right? Carrying out the testing activities for project has to be practiced with proper planning and must be implemented correctly. Now, what is testing? That is the next question. What is testing? So testing is the purpose for evaluating a system or its component with the intent to find whether it satisfies the specified requirement or not. It means testing just ensure the thing that is work in a right manner or not. Exactly you define that thing or design a particular thing that behave according to your requirement or not. That is a part of testing, right? In simple word, testing is executing a system in order to identify any gap, error, or missing requirement in to actual requirement. It means when you perform the testing, you just cross check the thing you develop it exact what you want or it's something else. Something else means is there any gap, is provide the error, some requirements are missing, something that are not fulfilled according to your desire or your need. So that is covered in our testing. Okay. Now, who tests? That is the next question, big questions. Who tests? So the first part is software developer, designer plus coder, right? Software tester, that is a specific stream, software testing, right? But in general case, when you design something, on your basis you cross check your developed things that is work properly or not in thoroughly but in just you cross check the work where the particular thing is work properly or not. Third one is project lead and manager. Fourth one is software quality assurance, and the last is end user. So in testing, the five players are work. First, who develop the thing, that is designer and coder. Second, the testers, that is the second level. When you develop the thing, some other person test your thing, that is called testers in simple and layman language, right? And then project lead. Project lead means which govern wholesale activities regarding the development activities or some any other projects, right? So project lead or manager check the things they are working correctly or not. After that, fourth player come to the picture, that is software quality assurance team, right? Before 2 to 3 minutes, right? Uh, I told you what
2 and 3 quality assurance parameters or a name, right? That is ISI marks, right? Second one is ISO certifications, right? Third one CMM. So and some others are quality assurance measurements or checks, right? They provide the things that particular product is up to the mark, right? When you purchase any electronics good, then ISI marks is a quality assurance saying that product is test under the worst to worst condition and it behaved properly, right? So quality assurance is a guarantee that product is tested in each and every environment and it behave properly in adverse conditions, right? So the quality assurance is a parameter for the test, right? Next one is end user, right? Most of the who are known, right. Web of testing is required to check fulfillments of requirements. Say, when you develop a SRS, right? It's a good question. When you develop a SRS, right? After completing the SRS, there is a essential requirement. You check your entire document that is properly right or covered each and everything. Just like take an example, your examination copy, right? In examination copy, you attempt a question, right? After complete your examination before time, if you have 2 to 3 minutes in your hand, then you again recheck entire the thing. That is a testing. And after perform this testing, you assure the all questions you are attempt is correct or in a proper way. That is a quality check, right? So testing and quality, they are correlated. If you perform rigorous testing, that is output is the accurate quality of that product, right? And the last part is end user. What is the meaning of end user testing? So two different type of testings are performed by the end user. That is called the beta testing, right? After complete and test each and everything within a environment. After that, the project lead, software tester, and developers all are satisfied. Then that product is launched in a outer world. And some specified customer or a range of customer did test that software according to their needs. If they are satisfied, then the product is actually launched in the market. Now, the beta testing is depend on the company to company, and beta testing size is depend on the company's requirements, right? Most of the time, uh, bigger company launch the beta version in higher scales, right? For example, Google, right? When the Google Associate Voice Assistant, the mic symbol is applicable in your browser, and beta version is also rated. After certain time, beta version is removed and the mic symbol is as it is, right? Okay, so that is a part of beta test. Beta test means when you develop the software, you test the software in your basis and you are completely satisfied, then you launch that product for the testing purpose for end users requirement they are meet or not, right? So these are the basic layers of testing, right? Now, what is the testing process? The software testing process is to find out the maximum bugs and errors from the software or product and make the software bugs or error free. Now the question is arise, what is the bugs and what is the error? That is an important question. What is the bug and what is the error? So if you find out any error during the compilation times or during the development time, that is called error. After completing the program, your program is behave properly, but in certain condition, they behave abnormal. That is called bug. For example, it's a simple example. If you create a program for division of two numbers, right? Suppose you provide the input 4 divided by 2, they give the right output. But if you provide the 4 divided by 0, the program is abnormally terminated or it behave abnormally. So that is called the bug. You not handle properly divisible by 0 condition, right? So that is called bug. Okay. So in testing process, we focus on error as well as the bugs.
Without software testing process, the software has poor quality. That is 100% sure. When you not test anything, right? So always quality goes to the poor side, right? The software may contain the critical errors or bugs, right? The cost of error or bug may be too high. If the initial phase you don't fix your error or bugs, so later on that is a complicated situation, and then you want to fix that bug, that is a additional cost, additional effort. So overall you face a big loss of that particular event, right? So in testing process, be very conscious about each and every phase. When we switch from one phase to another phase, we always 100% sure in previous phase there is no error, then we focus on the next phase, right? This is a testing process block diagram, right? So coding, designing documents and SRS documents. अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, सर इन SRS और डिजाइन डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड द टेस्टिंग race, right? So definitely each and every part is required the testing, right? So code, design document, SRS document, design test suite. We later on discuss what is the test suite, test articles, right? But in this part we focus on what is the testing process, right? So code, design documents and SRS using the design test suite and test suites random test case and check the results. If the failure list, then again debug the program, write error list, correct error and correct program. This is a normal block diagram. When the error सर is ये मैनुअल टेस्टिंग का डायग्राम सर. right, it is a manual testing, right? Manual testing and automatic testing, right? Two different Yes aspects, sir. right? Yes But sir. in general way, the testing is a simple way you test a thing, right, with certain rule and regulation that is covered in a test suite, right? After test suite, you pass that particular problem. If the problem is pass all and each every condition, then the program is correct. If you face some problem, so you create a failure list for particular conditions, right? So you write down the condition and the failure, why this condition is failure. Suppose we take an example, 2 divided by 0, right? The logic is true, but the output is Unexpected. Yes. unexpected, or that is called bug, right? So you write down these conditions, so you test. Suppose you use a integer data type, right, rather than float, so the output is vary. When you divide 5 divided by 3, so output is something, but you use the integer value, so it gives the output only without decimal values, so the things is vary. So you write down each and everything, that is called the failure list. Okay, after completing your failure list, you again the debug your program, right, and correct that errors according to your failure list, and then again retest that program. If there is no error is occurred, right, so that program is 100% accurate, so you pass that program in next level. Okay, I hope you clear your doubt. Yes sir. Okay. Now, basic question of testing. First is why to test? Testing becomes absolutely essential to make sure the software works properly and does the work that it is meant to perform. Right? Second, what to test? Any working product which perform part of software application has to be tested. Both data and program must be tested. What is the meaning? Most of the time we check the program, right? The program is correct, but in certain label, okay, you want to uh, Vaibhav, can you explain your doubt? Okay, your question is कि बग के लिए क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे एरर फाइंड आउट करने के लिए देखो, बग और एरर्स में एक थिन लाइन होती है, राइट? एरर्स क्या है? जब तक आप अपना डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो, उस ड्यूरेशन में जितनी भी चीजें ऑकर होंगी, राइट, वो सारी आपके पास में एरर कहलाएंगी, राइट? जो भी आपके पास में इनकरेक्ट पार्ट ऑकर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एरर।
बट आफ्टर डिप्लॉय और प्रोजेक्ट, राइट, इट मीन्स अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो जब तक प्रोजेक्ट पार्ट है आपका तब तक हम एरर्स बोलते हैं, ऐसे सिंपल वे में इसको समझो। जब तक आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, राइट, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, गलत आउटपुट आ रहे हैं, वॉट एवर जो भी है, वो सारी एरर्स है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट, आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, आप 100% श्योर थे, सारी चीजें ओके हैं, ओके, आफ्टर दैट यू डिलीवर दैट प्रोडक्ट, राइट, प्रोजेक्ट आपने किसी को डिलीवर कर दिया, ओके, आफ्टर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोडक्ट, राइट। सो अब उस प्रोडक्ट में जो भी एरर्स ऑकर होंगी, दैट इज नॉट एरर, दैट इज बग, ओके। सपोज हमने एक कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट जनरेट करी और उस रिपोर्ट में आपके पास में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है, सो दैट इज बग, क्लियर। लेकिन यही अगर आपके पास में कैलकुलेशन मिस्टेक जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे तब आ रही थी, दैट इज कॉल्ड एरर, ओके। आई होप थिंग्स इज क्लियर। सो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो बीटा टेस्टिंग होती है या अल्फा टेस्टिंग होती है, राइट, स्मोक सेंट्री, बहुत सारी टेस्टिंग्स आपके पास में यूज होती है, क्लियर। सो उस चीज में हमारे पास में अलग अलग टेस्ट केस बनाते हैं। नाउ अभी हम लोग बिगिनिंग पार्ट्स में हैं। सो टेस्ट केस कैसे डिजाइन होते हैं? सो बिफोर डेवलपमेंट, आफ्टर डिप्लॉयमेंट, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस आर डिजाइन फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट केस वी टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में हर चीज हम हैपेजर्ड वे में टेस्ट कर लेंगे। टेस्टिंग इज अ वेरी सिस्टमैटिक पैटर्न। ऐसा नहीं हमने आज सोचा टेस्टिंग करेंगे और आज हम टेस्टिंग करने बैठ गए और खत्म कर दी, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो टेस्टिंग की भी एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है। आफ्टर प्लानिंग हम उस पर्टिकुलर पार्ट को अलग अलग लेवल पे टेस्ट करते हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके टेस्ट केस होते हैं, उनके रिजल्ट्स होते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है, कितने डेज इवेलुएट होंगे, राइट, कितनी कॉस्ट बियर होगी, राइट। सो ये सारा पार्ट आपके पास में टेस्टिंग का आता है, राइट। टेस्टिंग इटसेल्फ में एक अपने आप में सेपरेट फील्ड है, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इंडस्ट्री में आपके पास में मोस्टली 40-20-40 का रेशियो रखा जाता है। 20% कोडिंग, 40% टेस्टिंग, 40% रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, तभी 40% आपका डेवलपमेंट, जो आप सपोज अगर आपने 1 साल का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम लिया हुआ है, तो उस 1 साल में आपके पास 10 मंथ्स जो है आपके पास में, वो करीब करीब आपके पास में किसके लिए यूज हो रहे हैं? टेस्टिंग एंड एनालिसिस के लिए। और जो 2 मंथ्स है आपके पास में, वो किसके लिए यूज हो रहे हैं? कोडिंग के लिए। तो यानी फर्स्ट 4 मंथ्स और 6 मंथ आप किस में इन्वॉल्व कर रहे हो? 40% निकालो आपके पास में 12 मंथ्स का, वो आपके पास में यूज हो रहा है एनालिसिस पर्पस के लिए, राइट। आफ्टर दैट 20% यूज हो रहा है कोडिंग के लिए एंड रिमेनिंग 40% आपके पास में यूज हो रहा है अगेन टेस्टिंग के लिए, राइट। सो अब क्वेश्चन जनरेट होता है, जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो क्या कोडिंग नहीं होगी? बट ऑब्वियस है, अगर कोई भी प्रॉब्लम ऑकर होगी सो यू परफॉर्म अगेन, राइट, कोडिंग पार्ट। सपोज एक कोई बग ऑकर हुआ या एरर ऑकर हुई, सो आप क्या करोगे? उस एरर को करेक्ट करोगे तो ये कोडिंग पार्ट ऑटोमेटिकली इंक्लूड होगा। सो दैट आर इंटर रिलेटेड थिंग्स, राइट। बट मैक्सिमम टाइम हम किस चीज पे एम्फसाइज करते हैं? क्वालिटी चेक पे, राइट, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। How often the test when a program is modified or newly developed, it has to be tested. Suppose अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस आए, राइट, सो उस चेंज को करने के बाद हम उसे दोबारा से टेस्ट करेंगे। हम ये मान के नहीं चलेंगे कि ये ऑलरेडी टेस्टेड था तो ये अभी भी करेक्ट रिजल्ट देगा, राइट। सो अगर हम एक माइनर चेंज भी अपने प्रोग्राम्स में करते हैं, सो अगेन हमें पूरा का पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो why to test, what to test, and how often to test, right? These are the 3 basic questions. So I hope all are clear why to test, what to test, and how often to test. क्यों हम कंटिन्यूअसली टेस्टिंग करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, क्यों टेस्ट करते हैं, राइट। दीज आर द क्वेश्चंस। सो इनके आंसर्स क्लियर कट है। वाई का मीनिंग क्या है? टेस्टिंग बिकम एब्सोल्युटली इसेंशियल टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपरली एंड डज द वर्क दैट इज मेंट टू परफॉर्म, राइट। जो चीज हमारे पास में है, हम उस चीज को जो हमने डेवलप किया, क्या वो एग्जैक्टली वैसा ही वर्क कर रही है, राइट। इसलिए हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, पहली चीज, राइट। अब सेकंड पार्ट है, एनी वर्किंग प्रोडक्ट विच परफॉर्म पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैज टू बी टेस्टेड, बोथ डेटा एंड प्रोग्राम मस्ट बी टेस्टेड। तो सर्टेन टाइम पे हम डेटा के लिए, यानी जो हमने इनपुट डेटा दिया है, क्या उस पर वही एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है? तो अब यहाँ पे डेटा के थ्रू आप प्रोग्राम टेस्ट कर रहे हो, प्रोग्राम सेपरेटली भी टेस्ट हो रहा है। सो क्या क्या चीजें टेस्ट करते हो आपके पास में? आप प्रोग्राम भी टेस्ट करते हो, डेटा भी टेस्ट करते हो, डेटा के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आ रहा है उसको भी टेस्ट करते हो।
हम कंटिन्यूसली टेस्टिंग क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? अगर सपोज हमने कोई भी चीज चेंज करी हुई है, माइनर या मेजर चेंजेस किए हुए, सो अगेन वी रीटेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, राइट? नाउ व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग? So again, in newer development approach, right, testing is involved each and every phase of the software development life cycle, right? So testing is done in different form at every phase of SDLC, right? During the requirement gathering phase, the analysis and verification of requirement also considered as testing. Suppose आपने कोई इंफॉर्मेशन गैदर करी, okay, after gathering the information, some relevant information you are gather and some irrelevant information also. So how to refine that thing? That is a part of testing, right? That is called the verifications and validation. Suppose we take a simple example. You fill a certain form, right, where the asterisk symbol is occur. So what is the meaning of asterisk symbol? That is a essential. अगर आप उसमें कुछ भी नहीं इनपुट करोगे तो वो आपको फॉर्म सेव नहीं करने देगा. इट्स दैट क्लियर? सो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग का ही तो पार्ट है, ये हमारी टेस्टिंग का ही तो पार्ट है. अगर हमने एस्टिक सिंबल मार्क किया है और फिर भी हम ब्लैंक डेटा जाके सेव कर ले रहे हैं, सो दैट इज अ एरर. सो हम इस चीज को टेस्ट करेंगे. इफ वी अप्लाई द एस्टिक सिंबल, दैट मींस इट इज अ मैंडेटरी. हम वहां पे वो चीज डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, या विदाउट डाले हमारे पास में डेटा सेव हो रहा है, राइट? सो दैट इज अ एरर. ओके, रिव्यूइंग द डिजाइन in the design phase with the intent to improve the design is also considered as testing. आपने मैक्सिमम वेबसाइट्स देखी होंगी जो आपके पास प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं. आप देखो उनके फॉन्ट स्टाइल, राइट, फॉन्ट साइज, क्लियर कलर कोडिंग स्कीम्स, राइट, ये सारी चीजें आपके पास में यूनिफॉर्म पैटर्न पे होती हैं. लेकिन जब हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं बीइंग अ फ्रेशर, तो एक फॉर्म पे कुछ और डिजाइनिंग होती है, दूसरे पे कुछ और होती है, एक पे फॉन्ट साइज कुछ और होता है, एक पे अलाइनमेंट्स कुछ और होते हैं. But in real words आपके पास में that is not permissible, right? So that is also the part of testing, right? So testing आपके पास में दो तरीके से आप बोल सकते हो. एक आप कोड के लिए टेस्टिंग को चेक कर रहे हो और एक डिजाइन पार्ट पे टेस्टिंग को चेक कर रहे हो, राइट? तो जो हम डिजाइन करते हैं, डिजाइनिंग पार्ट पे भी टेस्टिंग परफॉर्म होती है. ओके, सो टेस्टिंग परफॉर्म बाय अ डेवलपर ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोड इज आल्सो कैटेगराइज्ड एज टेस्टिंग. आफ्टर कंप्लीट योर कोड, आप अपने लेवल पे चीजों को टेस्ट करते हो, so that is also part of testing, right? Now when to stop testing? Again interesting question कि हम testing कब stop करें. The following aspects to be considered for stopping the testing process. First is testing deadline. हमने suppose कुछ deadlines डिजाइन की हुई है. आज हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और वी डिजाइन अ डेडलाइन 5 डेज हम इसकी रिग्रेस टेस्टिंग करेंगे. 5 डेज में जितने भी टेस्ट केस हैं, टेस्ट प्लान्स हैं, हम वो सारे के सारे एग्जीक्यूट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट. सो आफ्टर 5 डेज हमारे पास में क्या हुआ, टेस्टिंग डेडलाइन खत्म हो गई, हमारे जितने भी 100 टेस्ट केसेस थे हमने सारे रन करा लिए, तो टेस्टिंग प्रोसेस एंड हो गया, राइट? नाउ कंप्लीशन ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट. नाउ कंप्लीशन ऑफ फंक्शनल एंड कोड कवरेज टू द सर्टेन पॉइंट. कंप्लीशन ऑफ फंक्शनल एंड कोड कवरेज मींस कि आपने अपना जो भी चीजें डिजाइन की हुई हैं, कि हमने एक पर्टिकुलर फॉर्म डिजाइन किया, इसकी हमने टेस्टिंग करी और टेस्टिंग करने के बाद हमने इसे कंप्लीट कर दिया, राइट? तो हम स्टेप बाय स्टेप भी टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं. तो वहां पे उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए वो टेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया. बग रेट फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल एंड नो हाई प्रायोरिटी बग्स आर आइडेंटिफाइड. सो अगर हमारे पास में हमने सारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिया, बीटा टेस्टिंग परफॉर्म हो गई. बीटा का मतलब है कि यूजर के साइड पे हमने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया और 3 to 4 मंथ्स का हमने बीटा टेस्टिंग का टाइम रखा है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम हार्डली 10 to 15 हमारे पास में चेंजेस आए हमारे पास या सजेशंस आए. सो हमने उन चेंजेस को, या बग्स आए जो भी हम बोल सकते हैं उनको, राइट, हमने उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लिया. कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आया. सो अगेन इन दैट प्रोसेस आपके पास में टेस्टिंग स्टॉप हो जाएगी. मैनेजमेंट डिसीजन, राइट, मैनेजमेंट चाहता है बहुत टेस्टिंग हो गई है अब बंद कर दिया जाए, राइट, हिडन एंड ट्रायल्स मेथड बहुत हो गए, राइट, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, सो स्टॉप द टेस्टिंग प्रोसीजर. इन सिंपल वे हम ये बोल सकते हैं कि टेस्टिंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है, राइट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. बट इन जनरल केस हम एक लेवल पे जाने के बाद किसी भी चीज को टेस्ट करना बंद कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब कोई नया टीचर आता है, एट दैट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे चेक करते हैं, राइट. आफ्टर 3 to 4 days चेकिंग उन्हें लगता है नहीं the teacher is enough smart, so testing procedure automatically वो स्लो डाउन हो जाता है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम बंद हो जाता है, राइट. सो दैट इज अ ह्यूमन नेचर.
राइट। सो इन सारी चीजों को हम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं, डिपेंड ऑन डेडलाइंस, डिपेंड ऑन केस एग्जीक्यूशंस, डिपेंडेंट ऑन completion of functional requirement, bug rates falls, where goes slow down, then and at the last management decisions, right? Testing versus debugging, these are the two different aspects, what is the testing and what is the debugging, right? So testing is focused on identify the problem in the product done by the tester, need not know the source code. Okay. Debugging is to make sure that the bugs are removed or fixed, done by developer and need to the source code, right? So this is the difference between testing and debugging. Okay. Now, not only build software plus robust, powerful and perfect software, good designing, good performance, remove unnecessary code, user-friendly software, improve software quality. These are the plus point of software testing, right? Myth क्या है? First myth है testing is too expensive, right? ये बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ऐसा नहीं है, राइट। अगर हम टेस्टिंग को सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो टेस्टिंग की कॉस्ट हमारे पास में सबसे मिनिमाइज हो जाती है, लेकिन अगर टेस्टिंग को हमने ओवरलुक किया, राइट, या हमने उस चीज को स्किप किया, तो टेस्टिंग की कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज हो जाती है। नाउ टेस्टिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, ये भी एक मिथ है, राइट। टेस्टिंग के अपनी डेडलाइंस होती हैं, जैसे आप डेवलप का डेडलाइंस होती है वैसे ही टेस्टिंग की भी डेडलाइंस होती हैं, तो आप विद इन है टाइम ड्यूरेशन अगर आप चीजों को परफॉर्म कर रहे हो तो टेस्टिंग कभी भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट है ओनली फुली डेवलप प्रोडक्ट आर टेस्टेड। ये जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री आपके पास में बिगनिंग फेज में थी, सो ये मिथ बहुत ज्यादा होता था कि जब हम सब कुछ डेवलप कर लेंगे तब हम टेस्ट करेंगे। नाउ दिस मिथ इज कंप्लीटली रिमूव, राइट। हम ईच एंड एवरी पार्ट पे अपनी चीजों को टेस्ट करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो आपके पास में यूजर मैनुअल्स हो, कोडिंग हो, राइट, टेस्टिंग हो, each and every part are tested in each and every phase, right? Complete testing is possible. जनरली क्या होता है, हम टेस्टिंग्स को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिफाइन, सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिफाइन करते हैं और उन मॉड्यूल्स को अलग अलग प्रोग्राम्स में, तो हम हर एक प्रोग्राम को पहले चेक करते हैं, देन जो प्रोग्राम्स को मिलकर मॉड्यूल बन रहा है उसको फिर चेक करते हैं, फिर हर एक मॉड्यूल को कंबाइन करके हम अपने कंप्लीट सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं, राइट। सो दैट इज द सिनेरियो ऑफ कंप्लीट टेस्टिंग। A tested software is bug free. ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि हमने जब सारा सॉफ्टवेयर टेस्ट कर लिया तो उसमें कोई बग नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मे बी कुछ एडवांस सिचुएशंस हो, फॉर एग्जांपल विंडो आज भी हम लोग यूज करते हैं, बट आपके पास में कुछ बग्स आज भी पॉसिबल हो जाते हैं आपके सिस्टम में। सपोज विंडो 10 इंस्टॉल है और आपने 4 GB रैम लगा रखी है, राइट, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट ड्यू टू सम आपके पास में रैम जो आपके पास यूजेज है वो बढ़ता जा रहा है, आफ्टर सर्टेन लेवल आपके पास सिस्टम हैंग हो गया या विंडो ने एक एबनॉर्मली एरर ऑकर कर दी, फैटल एरर दैट्स कॉल्ड, राइट। सो कुछ एरर्स ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास में टेस्टेड सॉफ्टवेयर कभी भी बग्स ऑकर नहीं कर सकते हैं, राइट, इट मे और मे नॉट बी, राइट। मिस डिफेक्ट आर ड्यू टू टेस्टर। सो ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास में जो टेस्टर्स है उनके थ्रू कोई डिफेक्ट मिस कर दिया गया, उस समय जब हमने टेस्ट किया उस तरीके की कोई कंडीशन नहीं आई, राइट, उस तरीके का कोई चीज ऑकर नहीं हुई, एबनॉर्मल उस तरीके की कोई कंडीशन नहीं हुई। हार्डवेयर टेस्ट में हमारे पास एक लेवल के हार्डवेयर है, हमने उन पर टेस्ट कर लिया, बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब यूजर एंड पे गया तो मालूम चला कि वहां पे कुछ चीजें आपके पास में मैसी हो गई। सो ये भी एक मिथ है कि मिस डिफेक्ट आर ड्यू टू टेस्टर। तो टेस्टर आपके पास में अपना काम प्रॉपरली करते हैं, उनके थ्रू कोई भी चीज मिस नहीं होती है, जितनी भी पार्ट आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन में होते हैं, राइट। टेस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। टेस्टर आपके पास में क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, टेस्टर आपके पास में एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टिंग्स के लिए, और जब हमारे पास टेस्टिंग अप टू द मार्क होती है तो हम कहीं ना कहीं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपने आप मीट आउट कर लेते हैं, राइट। सो देयर इज अ बिग मिथ कि हमारे पास में टेस्टिंग और क्वालिटी, सो दीज आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट। टेस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग, क्वालिटी इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। बट हाँ, एक जनरल वे में बोला जाता है कि अगर हमारी सारी चीजें अप टू द मार्क होंगी तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अप टू द मार्क कब होगी, जब हमने टेस्टिंग अपनी प्रॉपरली परफॉर्म करी होगी। सो दिस इज अ मिथ, इसलिए आपके पास में अराइज होता है कि दोनों चीजें हम कोरिलेट करते हैं, राइट। टेस्ट ऑटोमेशन शुड बी यूज वेदर पॉसिबल टू रिड्यूस टाइम। सो टेस्ट, अभी आपसे आप में से किसी ने पूछा हुआ था मैनुअल टेस्टिंग और
ऑटोमेटेड टेस्टिंग। सो टाइम रिड्यूस इज अ डिफरेंट थिंग। मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग में हमारे पास एफर्ट्स और वर्किंग प्रोसेस स्टाइल चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास में टेस्टिंग में टाइम रिड्यूस हो जाएगा या हम उस चीज को कहीं और कंपनसेट कर देंगे। सो दैट इज नॉट क्लियर। तो टेस्ट ऑटोमेशन में हमारे पास में, बट ऑब्वियस है अगर हम कोई भी चीज ऑटोमेटिक यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पास में लेस कम टाइम लेगी इन कंपैरिजन टू जो आपके पास में मैनुअल काम कर दो। क्लियर। सो ये सारे आपके पास में मिथ हैं, राइट। इनके करस्पॉन्डिंगली कुछ चीजें करेक्ट हैं, कुछ चीजें रॉन्ग हैं। सो टेस्टिंग आपके पास में ओवरऑल एक जनरल मैकेनिज्म है, एक जनरल अप्रोच है। केवल हमारे पास में जो भी चीजें हैं वो अप टू द मार्क है या नहीं है, इनको एक टेस्ट करने का तरीका है, राइट। एनीवन कैन टेस्ट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यस, आपके पास में बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री के आउटसाइड होते हैं, जिनको मैं अभी आपसे बोला बीटा टेस्टर्स, तो वो आपके पास में टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। अ टेस्टर ओनली टास्क इज टू फाइंड बग्स, फाइंडिंग बग्स इज अ टास्क ऑफ द टेस्टर, राइट। बट उनका काम केवल यही नहीं होता है कि केवल बग्स निकालना। अगर आपके पास में आप काम कर रहे हो, सारी चीजें अच्छी हैं, कुछ सजेशंस भी हो सकते हैं, राइट। केवल एरर फाइंड आउट नहीं करना होता है, कुछ सजेशन पार्ट्स पे भी आप चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। तो केवल उनका काम टेस्टिंग का बग्स निकालना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपके पास में हम टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे यूज कर सकते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की। तो आई होप बेसिक चीज आपको क्लियर हुई होगी, व्हाई वी यूज द टेस्टिंग। ओके।